Now, let us understand the justice. One of the most important objective of Indian state, be it any institution, any organ, any branch of the Indian state, they all have only one goal to achieve the justice. This justice word mentioned at a top priority in the Indian preamble. John Rawls, the famous American social liberal political scholar, argued justice is the first virtue of any social institution. If you want to maintain the credibility of any institution, you have to ensure the justice in the institution, otherwise, it will not survive for long. But before understanding the justice, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जस्टिस की इंपॉर्टेंस मेंस एग्जाम में क्या है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है. So first let us look at some question. The first question: explain the constitutional perspective of gender justice with the help of relevant constitutional provision and case laws. 2020 to 2023 in GS paper 2. Second question: analyze the John Rawls. Sorry, this is the John Rawls. Concept of justice as a fairness in ethics. The soul of the new Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) is a justice, equality, impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss in the light of major shift from a doctrine of punishment to justice, from punishment to justice in the present judicial system. And the fourth, in essay paper asked in 2023, a society that has more justice is a society that needs less charity. And fifth question, there can be no social justice without economic prosperity, and without social justice, it is meaningless. अगर हम लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज देखेंगे तो आप देखोगे 2 to 3 question or even more than 3 question civil services asks every year from GS1 to 2 to 3 and then 4 and in essay, and sometimes if you have optional paper like PSIR, PABAD, सोशियो एंथ्रो, तो वहां भी जस्टिस के एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिल जाते हैं. एसए में इसका यूज है. एथिक्स की बेसिक फाउंडेशन फिलॉसफी जस्टिस पर ही टिकी हुई है, तो वहां तो आप बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. GS2 में सोशल जस्टिस में जस्टिस प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सोसाइटी में GS1 में, तो जस्टिस सिमिलरली इन GS3 देयर इज अ वन क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ. तो हर एक अल्टरनेटिव ईयर पे आप ये क्वेश्चन देखते हैं जीएस पेपर 3 में, एंड इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो जस्टिस ही है. तो जस्टिस आपके सिलेबस का बहुत इंटीग्रल पार्ट है और थ्रू आउट इस सारे जीएस में कहीं ना कहीं एक या दो बार जरूर पूछ लिया जाता है एवरी ईयर, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कहीं पूछा जाए या ना जाए एथिक्स में तो जरूर ही आ जाता है. तो जस्टिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. हाँ, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड इश्यूज जस्टिस की, और वो फाउंडेशनल फिलोसफिकल आइडिया जो हैं जस्टिस के, किस बेसिक प्रिंसिपल पर जस्टिस वर्क करता है, हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन एसे और एथिक्स और एनी अदर पार्ट ऑफ द सिलेबस. सो GS2 से जनरली जो डील करता है उसको हम 100% कवर करेंगे, बट बेसिक आइडिया जो अंडरलाइंग फिलॉसफी जस्टिस की होती है वो यहां कवर हो जाएगी, बीट फॉर एसए पेपर, एथिक्स पेपर और सोसाइटी और लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ, जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस एटसेट्रा. ये सब इसी में कवर हो जाएगा. ये सारे क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी इन पोजीशन टू सॉल्व इट. सो लेट अस अंडरस्टैंड द जस्टिस. Justice implies a harmonious reconcilement of individual conduct with the general welfare of the society.
स्टेट हमेशा ट्राई करता है, किसी भी स्टेट, स्पेशली द इंडियन स्टेट फॉर एग्जांपल, और इवन मॉडर्न स्टेट, अगर आप दे वर्ल्ड के स्टेट भी जब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, यू विल फाइंड हर एक स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट में एक प्राइम एम है टू इंश्योर द जस्टिस इन द सर्वाइव इन द सोसाइटी, एंड द essence of the justice is to achieve the summum bonum, the highest common good. This is the highest common good. Highest common good, in the words of Prime Minister, सबका साथ सबका विकास. Correct? So there are different models of justice. For example, one type of justice is distributive justice, जहां प्रोसीजर और एलोकेशन बहुत फेयर होता है. दैट इज अ फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेल्थ. फॉर एग्जांपल, डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 38 article, 39 article. These article basically deals with the distribution of resources, minimization of inequality. So that is a distributive form of justice. What is procedural form of justice? That is a legal administrative process will be fair. For example, article 21, article 14 of the equality before law. All citizens should be treated equally before the law. Then article 21, procedure established by law. By law, no person's life will be taken except procedure established by law. But there is another form of justice, substantive form of justice, and you have heard one more term, the due process of law. This due process of law looks nothing but the intent of law, and this is something we call it substantive form of justice. Not just only look at the procedural distribution, but taking the socio-economic historical background, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, कहीं कोई बैड इंटेंशन तो नहीं है किसी पर्टिकुलर लॉ का, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी का. दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. इंडिया में सबसे बड़ा मेजर पॉलिसी, मेजर initiative, that is the reservation system of India, which looks the socio-economic background of the people. That reservation under article 15 and 16, which inspired from the article 46 of DPSP, is a part of nothing but substantive form of justice. Then there is another form, retributive or corrective form of justice, that is a fair punishment. आप छोटे हो, बड़े हो, रिच हो, पुअर हो, एक सेम लॉ होगा जिसके थ्रू आपको पनिश किया जाएगा इफ यू विल वायलेट द लॉ. And there is a rectification process. For example, Supreme Court announced initially the death penalty in Mr. Prime Minister Rajiv Gandhi murder case, but later commuted the sentence and released as well after 30 years because of good conduct. तो हमारे यहाँ justice not only just a retributive but corrective form of justice as well, and with fair punishment. So these are the types of justice: distributive justice, procedural form of justice, substantive form of justice, retributive of justice. डिस्ट्रीब्यूशन में फेयर एलोकेशन होगा रिसोर्सेस का. स्टेट हमेशा ट्राई करते हैं टू इंश्योर सच ए फॉर्म ऑफ जस्टिस. इंडिया में आपको इस सारे फॉर्म के जस्टिस दिख जाते हैं. नाउ जस्टिस इन प्रियम्बल में जस्टिस बहुत हायरार्किकल नेचर में है. इफ यू लुक एट द प्रियम्बल सेज जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स. देयर इज ए हायरार्की. First social, second economic, third political. Dr. B.R. Ambedkar in Constituent Assembly argues without social justice, economic and political justice are meaningless. इनकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रेवलेंट है, ऐसी सोसाइटी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस का कोई मीनिंग नहीं है. So first ensure the social justice in the society.
So social justice, India's Article 14, 16, that is a reservation policy, deals with the social justice, ensures the social justice. All citizens are equal, irrespective of caste, class, race, sex, place of birth. Article 17 deals with the abolition of untouchability. Any form of untouchability will be abolished by the state, and the state will take stricter action if anybody, be it a state or any citizen, perform any form of untouchability. That is a social justice. Economic justice also mentioned in the preamble. Rich or poor are treated alike, and efforts are made to bridge the gap between them. तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड आयुष्मान भारत योजना इन मेडिकल फील्ड टू reduce the out of pocket expenditure so that even poor person can afford health facilities. This is economic justice. Then there is another form, political justice. Political justice means one person, one vote, one value. हर एक को सेम राइट है, एक ही वोट मिलेगा, बड़ा हो छोटा हो, पॉलिटिशियन से हो या एक पुअर पर्सन हो. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विल बी देयर. Opportunity to contest and participate in the election. You have the same opportunity. So this is a political level of justice. So we have social, economic, and political justice. These justice are mentioned in Indian preamble, and every state, every elected government tries to achieve these goals and objectives of the Indian preamble. Now let us understand the Rawlsian idea of justice. जॉन रॉल्स अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, एक लिबरल फिलोसफर हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं. एंड 1971 में उनकी एक बहुत फेमस बुक आती है, दैट इज अ थ्योरी ऑफ जस्टिस. In this particular book, he argues about the justice, and he famously says justice is the first virtue of any social institution. इस लाइन का मीनिंग ये है कि जब कोई स्टेट, फॉर एग्जाम्पल जुडिशरी, फॉर एग्जाम्पल एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर एक स्टेट उसको सेटअप करता है तो उसमें सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उस इंस्टीट्यूशन का ये है, उसमें जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए. अगर जस्टिस सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करेगा तो एक टाइम के बाद ये सिस्टम गिर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम नेपाल में क्या है? नेपाल में जस्टिस की प्रॉब्लम है. नेपाल में जो एलीट क्लास है वो ज्यादा एडवांटेज पोजीशन पर थी, तो कॉमन पर्सन ने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया. बिकॉज पुअर पीपल फील दैट दिस इज इनजस्टिस विथ अस, सो दे रिवोल्टेड एंड चेंज द गवर्नमेंट. तो किसी भी सोसाइटी में अगर जस्टिस लैक करता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर जस्टिस फेल हो जाता है, देन वो इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और पीपल विल रिवोल्ट एंड विल क्रिएट ए क्योस इन द सोसाइटी. ये हर एक स्टेट में होता है. बड़े बड़े रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल बशर अल असद गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल रशियन रेवोल्यूशन, ब्रिटेन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, हर एक रेवोल्यूशन में बस जस्टिस की ही प्रॉब्लम थी. वो शायद प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाया सोसाइटी में और लोगों ने रिवोल्ट कर दिया. नाउ जॉन रॉल्स gave the procedural form of justice. Procedural form of justice. एंड इनके प्रोसीजर में स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल, पीपल शुड स्टैंड एट ओरिजिनल पोजिशन एंड हैव वेल ऑफ इग्नोरेंस. तो सबसे पहले यहाँ ये समझते हैं कि व्हाट इज ओरिजिनल पोजिशन.
ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था जॉन रॉल्स का, टू गिव ए थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इंश्योर जस्टिस इन द सोसाइटी, कि लोग सबसे पहले एक ओरिजिनल पोजीशन पर स्टैंड करेंगे जहां किसी को अपनी कास्ट, आइडेंटिटी, रेस, क्लास, इन सब के बारे में ज्यादा डिफरेंशिएशन पता नहीं होगा। तो आप एक आइलैंड इमेजिन कर सकते हो कि जहां लोग ये सारी चीजें नहीं जानते हैं, अभी एक स्टैंडिंग पॉइंट पे जहां अभी लोगों के पास रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहां ये लोग सारे खड़े हैं and have a veil of ignorance. They do not know about their caste, class, race, but they have some basic understanding. They are rational agents. They know what is a sense of justice, what is meaning of allocation of resources, what will happen when there will be unequal distribution of resources. जॉन रॉल्स कहते हैं, अज्यूम करिए आप एक ऐसी सोसाइटी जहां हम ओरिजिनल पोजीशन पर खड़े हैं, जहां लोगों को अपनी कास्ट, क्लास, रेस के बारे में नहीं पता है, बट पीपल आर रेशनल एजेंट्स, दे नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, व्हाट विल हैपन आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी सोसाइटी में जब हम किसी भी रिसोर्सेज का, किसी भी प्राइमरी गुड्स का क्या करें, जब एलोकेशन करने लगेंगे तो कैसे होगा, उसी के प्रोसीजर को जॉन रॉल्स एक्सप्लेन करते हैं। जॉन रॉल्स सेज कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी पर्सन जब रिसोर्सेज को फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा तो उसके माइंड में ये अनसर्टेनिटी होगी कि कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम वो लीस्ट डिसएडवांटेज्ड पर्सन ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा रिसोर्सेज को इस वे में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि दैट डिमांड्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सपोज पर्सन एक्स डज नॉट नो कि वो कल को एक रिच क्लास में बॉर्न होगा या पुअर क्लास में बॉर्न होगा, या उसकी सोसाइटी में स्टेटस क्या होगी, किस क्लास में होगा, सिटी में होगा कि विलेज में होगा, और यहाँ सारे रिसोर्सेस हैं, इन सारे रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एक्स जानता है कि कैसे रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो एक्स से अगर पूछा जाएगा कि आप बताओ इन रिसोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी में, तो एक्स क्या करेगा कि अपनी पोजीशन को मिनिमाइज कर देगा। एक्स सोचेगा कि ऐसा करते हैं कि अगर हम वर्ष की वर्ष कंडीशन में जाएं तब भी हमें एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड मिल सके। जॉन रॉल्स सेज, ड्यू टू द uncertainty, individual will choose the least disadvantaged position and demands the greatest benefit for the least advantaged. तो हम रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे वे में करेंगे कि जो सबसे पुअर पर्सन हो उसको भी बेनिफिट होने लगे, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ये रहेगा कि हम वो पुअर पर्सन ना बन जाए। तो उस चीज को, उस अनसर्टेनिटी को, उस डिसएडवांटेज्ड पोजीशन को अवॉइड करने के लिए हम मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हर एक पुअर पर्सन को देंगे। जॉन रॉल्स आर्ग्यूज दैट हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे ही तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज सोसाइटी में इनजस्टिस प्रिवेल करेगा। नाउ इन स्टेप थर्ड, जॉन रॉल्स गेव ए लेक्सिकल ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल, बहुत क्रोनोलॉजिकल फैशन में कैसे होना चाहिए जस्टिस। जॉन रॉल्स सेज कि सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी एप्लीकेबल होनी चाहिए, जहां सारे लोगों को इक्वल लेवल की लिबर्टी हो, ऑल एट इक्वल लेवल। एंड सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी हो टू एक्वायरिंग ऑफिसेस, पोजीशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड फिर भी अगर इसके बाद भी कोई इनइक्वालिटी रह जाती है, सो देयर इज ए करेक्शन पॉइंट एज वेल, दैट इज ए डिफरेंस प्रिंसिपल। और ये करेक्शन पॉइंट तभी जस्टिफाई होगा जब वो ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा। यानी हम करेक्शन तभी करेंगे जब उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट लीस्ट एडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को होने लगे। So any departure from equal distribution of the primary goods arising from the above two principles will be rectified, and it will be justified only it could be proved to bring the greatest benefit to the least advantaged section of the society.
हम फॉर एग्जांपल इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी, तो स्टेट को ये लगता है कि हमें एक प्रॉपर रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें 27% कोटा होना चाहिए फॉर ओबीसी, 15% कोटा फॉर एससी एंड देन 7 पॉइंट फॉर एसटी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो स्टेट को ये लगता है कि सारे एलोकेशन रिसोर्सेस के बाद भी ऐसा है कि हमें इस कुछ लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, एंड दैट इज द डिफरेंस प्रिंसिपल वेयर स्टेट्स has created the reservation policy under Article 15 and 16. States shall promote with special care of educational and economic interest of weaker section of the society mentioned in Article 46 DPSP of Indian Constitution. तो हम वहां से डिफरेंस प्रिंसिपल क्रिएट करके उस पुअर सेक्शन को भी बेनिफिट कर सकेंगे। नाउ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जॉन रॉल्स थ्योरी। जॉन रॉल्स की थ्योरी सबसे पहले बहुत यूटोपियन कंसेप्ट थी और हाइपोथेटिकल थी कि कैसे कोई पर्सन जो कि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी चल रही है वो कैसे ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी, फिर कैसे उसको ये नहीं पता होगा कि वो अपनी कास्ट रेस रिलीजन सिटी विलेज कहाँ से आता है उसको ये नहीं पता होगा, वो कैसे रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड देन उसमें ये क्या लॉजिक लगाएगा। ये बहुत एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी एक स्टेप बहुत आगे जा चुकी है और अब ऐसे बैक आना देन रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूट करना ये पॉसिबल नहीं। सो दिस इज अ वेरी यूटोपियन एंड हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। नाउ if initial distribution of primary resources was equal, what is the need to rectify later? अगर सारे लोग जब उस एक पर्टिकुलर इनहेबिटेड आइलैंड पर खड़े थे और सारे लोग इक्वल थे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, इक्वल लिबर्टी मिली कि सारे लोग कोई भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते, जब सबको अपॉर्चुनिटी मिली, सबको लिबर्टी थी, तो आप लास्ट में जाके क्यों रेक्टिफाई कर रहे हो? Why are you rectifying at the end of the day? There is no need. This is injustice for against those people who have done hard work. And third, it discourages the meritocratic society. Significance of justice in society like India. First is social empowerment. Social empowerment, for example, Indian uh, state has created Abolition of Untouchability Act as well, 1955. We have already created Manual Scavenging Act, 2013, to avoid the manual scavenging, to even ban the manual scavenging. Political empowerment. The Parliament of India has created a Act Nari Shakti Adhiniyam through 106th Constitutional Amendment Act 2023. Political empowerment for women. Economic empowerment. We have codified and implemented Code on Wages 2019 and implemented in 2025. Equal Remunerative Act, equal pay for equal work, directive principle of state policy 39, to ensure gender justice by state. So Visakha guideline 1997 में Supreme Court give proper guidelines, detailed guidelines to avoid the sexual harassment at workplace which violates the fundamental right the life with dignity, Article 21 and 14. Similarly, in Sara Bano case 2017, abolish the triple talaq. Nalsa versus Union of India 2014. Supreme Court recognized the third gender, transgender as a third gender. In Navtesh Singh Johar 2018, read down the section 377 of IPC and decriminalized homosexuality. So these initiatives and reforms taken by the state to ensure the gender justice in the society. Constitution provisions, for example, Article 14, 15, 16, ये सब इंश्योर करते हैं जस्टिस। But there are lot of obstacles to achieve justice in society like India.
फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस में इंडिया में कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन स्टिल बहुत रिजिड है, हायरार्किकल है, डीपली रूटेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स है, बैरियर्स फॉर दलित वुमेन्स, ट्राइबल वुमेन्स। सो पैट्रियार्की डे बाय डे आपको डेली लाइफ में मिल ही जाती है। इकोनॉमिक जस्टिस में एक्सट्रीम concentration of wealth. For example, in 2023, there is a billionaire Raj report published where top 1% people are holding 40% of the wealth. Bottom 50% people, bottom 50% people, just 15% of wealth. So इतनी stark inequality है, इतना high Gini coefficient है. Now there is informalization of economy. So gig workers, street vendors. Now we have codified and formalized to some extent, but still there is a high informalization of work. Political justice, criminalization of Indian politics. More than ADR report says more than 44% of parliamentarians have the criminal background. Some are having the serious criminal backgrounds. There is a caste, religious, ethnicity based political mobilization. People vote their caste, not cast their vote. तो कास्ट रिलीजन के बेसिस पे वोट होता है, तो कॉमन पर्सन को अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। लो सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन डिस्पाइट 73rd 74th, आपको पति पंचायत सिस्टम आपको लोकल लेवल पर देखने को मिल जाता है, जहां विमेन रिप्रेजेंटेटिव तो होती हैं, बट सारे काम उनके हस्बैंड के ही थ्रू होते हैं। सो दे आर ओनली डमी कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट। Still we have just 14% women in Indian parliament. We have introduced Nari Shakti Adhiniyam Act 2023 to ensure 33% reservation in parliament as well. सो पॉलिटिकल जस्टिस में भी बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। जब इतनी मनी एंड पावर पॉलिटिकल सिस्टम में डोमिनेट करती है, तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड फिनिश हो जाती है। और फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड्स now has been abolished by the Supreme Court. Now, the role of the state to achieve justice in Indian society. What is the state doing? तो सोशल जस्टिस के एरिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स है, अनटचेबिलिटी एक्ट है, SC/ST एक्ट है। सो इन इकोनॉमिक जस्टिस वी विल सी द labor reforms 2025, wages code 2019 implemented. Similarly, in political justice में electoral bonds abolished by the Supreme Court to ensure equal playing field, which violates Article 14 of the Indian Constitution. And then gender justice, after Visakha guidelines, Parliament introduced the Post Act 2013, prevention of sexual harassment at workplace. So these are the areas which we should cover in justice topic, and ये एक philosophical background है जिससे हम क्वेश्चन को बीट इन एसे, एथिक्स और जीएस पेपर 2 सोसाइटी इजिली हैंडल कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द कंक्लूजन। जस्टिस मीट्स द मिनिमम नीड्स। एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। बहुत फेमस लाइन आती है आपके हिस्से में, यू कैन यूज एज अ कंक्लूजन इन योर जीएस पेपर, सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस। अगर सोसाइटी में ज्यादा जस्टिस है, ऐसी सोसाइटी को चैरिटी की जरूरत नहीं है। सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस requires less charity. So we have covered here this entire justice part from different perspective, be it political, legal, gender, social, economic, हर एक टाइप के जस्टिस को हमने कवर कर रखा है। एग्जैक्टली सेम फैशन में आपको एग्जाम में भी लिखना है। सो अब सबसे पहले यहाँ देखते हैं दिस क्वेश्चन, explain the constitutional perspective of gender justice.
with the help of relevant constitutional provisions. So case laws. So we have already discussed article 14, 15, 16, ये सब डील्स करते हैं किससे? जेंडर जस्टिस से. एंड द केस लॉज फॉर बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ. अगर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एग्जांपल आर्टिकल 42 maternity relief, there is a provision in fundamental duties as well, respecting the dignity of women. And then the case laws. Navtesh Singh Johar case, Johar case decriminalize the homosexuality. Nalsa Act, recognizing the third gender. Saira Bano case, triple talaq. Then we have the case like Bisakha guidelines 1997. Okay, analyze the John Rawls concept of justice as a fairness. Justice as a fairness. So we have already discussed this entire concept of justice as a fairness. आप इसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में एग्जांपल लेके जस्टिफाई कर सकते हो, इस आंसर को एनालाइज कर सकते हो. तो सोशल में इंडियन स्टेट क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एरिया में क्या कर रहे हैं, देन सिमिलरली पॉलिटिकल जस्टिस कैसे इंश्योर है, क्या चैलेंजेस हैं, द सेम आंसर यू कैन राइट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Then you can also discuss some concept, for example original position, veil of ignorance, and how John Rawls says justice is the first virtue of any social institution. Correct? The soul of the new law Bharatiya Nyaya Sanhita BNS is justice, equality, and impartiality. Indian culture ethos. Discuss this in the light of the major shift from the doctrine of punishment to the justice in the present judicial system. अब ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड होता है करंट अफेयर से. तो 2023 में इंडियन आईपीसी जब रिफॉर्म हुआ, चेंज हुआ, बीएनएस बन जाता है, तो उसी से आता है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ जस्टिस का जो आइडिया होता है वो दंड से मूव करके न्याय पर वर्क करने लगता है. तो बहुत सारी रिफॉर्म देखोगे, फॉर एग्जांपल एबॉलिशन ऑफ सेडिशन, then you will see prioritization of women laws. आपको देखने को मिलेगा कम्युनिटी सर्विसेज प्रोविजन फॉर पिटी ऑफेंसेस. तो आपको हॉस्पिटल में वर्क करना पड़ता है, डिजास्टर प्रोन एरिया में वर्क करना पड़ेगा. इफ यू आर इन्वॉल्व इन पिटी ऑफेंसेस, कहीं छोटे मोटे क्राइम में आप इन्वॉल्व हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कम्युनिटी सर्विस रदर देन कोई रिग्रेस पनिशमेंट नहीं होगी. आपको जेल नहीं सेंड किया जाएगा, रदर देन आप ऐसे कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व होगे, वो आपका पनिशमेंट रहेगा. डिजिटाइजेशन भी होता है, तो 0 FIR, EFIR जिसको बोलते हैं. सो दिस टू एंश्योर द लीगल जस्टिस इन इंडियन सोसाइटी. किसी विलेज में किसी पुअर पर्सन को ये नहीं पता होता है कि कौन सा जुरिस्डिक्शन किस पर्टिकुलर पुलिस अथॉरिटी स्टेशन के अंडर में आता है. तो ऐसे सिचुएशन में 0 FIR
इज ए वे आउट। एक बार आप पहले एफआईआर रजिस्टर्ड करा दो, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिस्पेक्टिव police station to ensure the legal justice. To ensure the legal justice, we have the pro bono work by lawyers promoted by NALSA. Similarly, you will see the free legal aid, Article 39A, to ensure the legal justice in the society. ये सारे रिफॉर्म्स होते हैं बीएनएस में, और हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट थी और बहुत करेक्टिव फॉर्म में शिफ्ट होती है. So earlier was the retributive justice. Now the justice has been shifted from retributive to reformative. Okay, so this is a short summary, summarized answer. You can write in this way. Now, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में. A society that has more justice is a society that needs less charity. आप एक क्वेश्चन अगर आप अंडरलाइन फिलॉसफी जस्टिस की समझते हो तो यू कैन राइट ए बेटर ऐसे. सबसे पहले यहां ये समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ चैरिटी. चैरिटी is done by state sometime privileged class, और ये डिस्क्रिशनरी होती है. ये कंप्लीट डिस्क्रिशन होता है प्रिविलेज्ड क्लास का कि वो चैरिटी करना चाहते हैं या नहीं. आर्बिट्री भी होता है. एंड दिस चैरिटी हैम्पर्स द डिग्निटी ऑफ ए कॉमन मैन. कॉमन मैन. बट जस्टिस जो होता है वो एक लीगल है, लीगल राइट है, डिग्निफाइड वे टू एक्सेस द रिसोर्सेस. सो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जब जस्टिस एडिक्वेट होता है तो ऐसी सोसाइटी में चैरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज क्रिएटेड राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज वेल. हमने एक कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन क्रिएट कर दिया. तो किसी भी चिल्ड्रन को आज किसी पर्टिकुलर किसी भी पुअर पर्सन को, सोसाइटी को, किसी रिच क्लास, रिच बिजनेसमैन के डोनेशन की जरूरत नहीं है. नो नीड ऑफ डोनेशन कि वो फंड करेंगे तभी किसी पर्टिकुलर बच्चे को एजुकेशन मिलेगा. वी हैव क्रिएटेड अ लॉ, वी हैव इंश्योर्ड द लीगल जस्टिस इन द सोसाइटी. इंडियन स्टेट हैज इंश्योर्ड. सो सोसाइटी में जब जस्टिस प्रिवेल करेगा, जब कंपलसरी एजुकेशन मैंडेटरी हो जाएगी, तो डोनेशन और चैरिटी की जरूरत नहीं है. सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव क्रिएटेड द इक्वल वे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. We have codified Wages Act 2019 and implemented in 2025. Now, किसी पर्टिकुलर एमएनसी कंपनी XYG को अब इस पर्टिकुलर XYG कंपनी का डिस्क्रिशन नहीं है कि आपको हॉलीडे देना है कि नहीं देना है, आपको ये मिनिमम वेजेस देने हैं कि नहीं देने हैं, आपको इंश्योरेंस देना है कि नहीं देना. दिस इज द राइट ऑफ द वर्कर्स, a dignified demand, because इंडियन स्टेट ने ये जस्टिस इंश्योर कर दिया थ्रू लीगल सिस्टम. यस, दिस इज योर राइट.
सो अब XYZ कंपनी का डिस्क्रिशन नहीं है कि कितना वेजेस देने हैं, कब छुट्टी देनी है, कब नहीं देनी है. दिस इज नॉट द डिस्क्रिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एमएनसी. सो जब किसी भी सोसाइटी में जस्टिस एक लीगलाइज्ड फैशन में प्रिवेल करता है, एक सिस्टमैटिक वे में प्रिवेल करता है, ऐसी सोसाइटी में चैरिटी की जरूरत नहीं होती है. देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. किसी सोसाइटी में सोशल जस्टिस नहीं अचीव हो सकता इफ दैट सोसाइटी इज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्पर. तो कोई बैंकरप्ट नेशन कभी फ्री एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकता, फ्री हेल्थ नहीं अफोर्ड कर सकता. आज मेजर वेस्टर्न कंट्रीज क्यों अफोर्ड कर रही हैं? बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर. So to ensure the social justice, we need economic prosperity first. But if there is economic prosperity and without social justice, उस सोसाइटी में सोशल जस्टिस ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी ग्रोथ तो है, बट इतनी हाई इनइक्वालिटी है कि 1% पीपल आर होल्डिंग 90% ऑफ नेशंस वेल्थ. ये ऐसी अगर स्टार्क इनइक्वालिटी है, तो ऐसी सोसाइटी, ऐसी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीनिंगलेस हो जाती है. ऐसी सोसाइटी में क्योस होगा, ऐसी सोसाइटी में हाई करप्शन होगा, ऐसी सोसाइटी में इनइक्वालिटी प्रिवेल करेगी, क्राइम्स इंक्रीज हो जाएंगे, एंड एवरीथिंग विल बी मीनिंगलेस. एंड एक टाइम के पीरियड बाद इसी सोसाइटी से रिवोल्ट हो जाएगा and will destroy everything. So there can be no social justice without economic prosperity, and without social justice is meaningless. So we have discussed these questions, how to write it, but yes, एक basic philosophy है in case of essay ethics question. ये GS2 की क्लास है, so we have discussed GS2 fully here. आप उस वैसे क्वेश्चन देख सकते हो, और there are other questions as well in PYQ itself. So go through those PYQs, solve any question if you come across justice topic. We have discussed it.